ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫਲਾਵਰ ਆ ਗਏ ਆ ਬਦਾਮਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਓਵਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਓਕੇ ਜਵਨੀ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? Good. What do you think America now? I think America, everybody his dream is to come to America. But when everybody here, America is not easy. Yes. It's really hard. Yeah. Work. Wake up every day. Go to work like 8 hours. Go home, sleep. Come back again next day. Every single day. Too much stress. The economy is really bad right now. I think God bless everybody for hard work. Yeah. And God bless you, BJ. Yeah. God bless too America. God bless America. Yeah. God bless every country. India country, too, Mexico too. India, everybody. Yeah. All the hard workers that wake up every day to go work, to come home and feed their families. Yeah. Okay, thank you. Bye. You. Javani, work is hard. Thank you, Javani. Good job today, no? Very hard, but God help me. Heavy. Help you. Up before rain is very trees, lot of problem. Flower. Yeah, flower. Next season start. Horses. No, see horse now. I think it's inside, no? For one horse? What are you doing? No, this guy said, let me see. Very hard. Mud. Yeah, shovel is very hard. Shovel. Okay. Good. The Mexican music, no problem. Without music, dancing. Okay, you're fine. Good, BJ. Yeah, good. Okay, music, Spanish. Bruno dio habla Jansi. Yankee marrale no es. Very good. Ah, देखो बारिश के मौसम में काम चल रहा है ਸਾਡੇ अंदर. Jose, how are you? Ocho. No, silly dance. No, so Papa. Very good, Kathleen. No, Julia. Gracias. No, Julia. Oh, very good. Berta. Hi, BJ. How are you? Welcome, America. What's up, BJ?
Oh, Sunday. You're tired today? Oh, Monday. Very hard. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday. I don't know. Mexican music, no problem. Don't music or dancing. Good. Friend, broken your heart? No, emotional. No, emotional. Bless India. I want music, happiness. No music. Happy Saturday. Uh-huh. Yeah. Yes. Yeah. We're here Mhm. working. Beautiful day. Mm-hmm. Right now, look at that. Beautiful. God bless India. Hand. Goodbye, Uh-huh. India. Good boss, Vijay. Hand. Sorry, it's DJ. इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे जो जतन करे मन रे, तू काहे न धीरज धरे। भो निर्मोही मोह न जाने, भो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे मन रे, तू काहे न धीरज धरे। हम सूरज की रोशनी को ना तो कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये खुदा के कंट्रोल में है। खुदा की बनाई हुई किसी भी चीज़ को हम चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मोह, हम मोह करते हैं सच्चे रिश्तों से, यारों दोस्तों से, पेड़ पौधों से, हवाओं से, बादलों से, बारिश से हम मोह करते हैं। हमें करना भी चाहिए, क्योंकि इन सब को खुदा ने रचा है, पर खुदा से ज़्यादा नहीं। पर जब हम खुदा से, सबसे ज़्यादा खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो खुदा का हमसे वायदा है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और खुदा का वायदा हमसे कभी भी झूठा नहीं हो सकता। हम दुनिया से, दुनिया के रिश्तों से जितनी चाहे मोहब्बत करें, हमें करनी चाहिए, लेकिन वो विश्वास, वो हौसला, वो बुलंदी जो खुदा की मोहब्बत में है, वो किसी सी मोहब्बत में नहीं मिल सकती। हम अक्सर दुनिया की सलाह लेते हैं, दुनिया से पूछते हैं, लेकिन खुदा से बड़ा सलाहकार कोई नहीं हो सकता। खुदा ने हमें मशवरा दिया, हमें सलाह दी कि तू सिर्फ मेरे बनाए हुए रास्ते पे चल, दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे पीछे पीछे। एक बार हमें खुदा की बात को मान लेना चाहिए, खुदा के बनाए हुए रास्ते पर चलकर। क्यों हम सारी ज़िंदगी दुनिया के मोह में, दुनिया की लालचों में, दुनिया की बड़ी बड़ी सपनों ख्वाबों में बसर कर देते हैं। वो सब चीज़ें भी हमको मिल सकती हैं। हमें खुदा की बात मान लेना चाहिए। हम खुदा के रास्ते पर चलकर उसके पीछे होना चाहिए, ताकि देखें वो सब चीज़ें जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं वो हमें मिलती है कि नहीं। वो बात बिल्कुल यकीनी है, वो सब चीज़ें खुदा को हमको देना बड़ा आसान है।
खुदा की मोहब्बत ने हमें खूबसूरत तोहफ़ा दिया, बाइबल। बाइबल हमें रास्ता बताती है, एक मार्ग दिखाती है। हम उस मार्ग पर चलेंगे तो सब बरकतें मिलेंगी जिनकी हमें ज़रूरत है, और उस मार्ग पर हमें खुदा से भी मुलाकात होगी। कितना कुछ मिलेगा उस मार्ग पर चलकर, मगर हमें चलना होगा, चलना पड़ेगा। हमारे लिए ज़रूरी है जांचना अपने रास्तों को, क्या हमारा रास्ता वो है जो हमें खुदा ने दिखाया है, या हम किसी और रास्ते में हैं। किसी और रास्ते में हमें खुदा से मुलाकात नहीं होगी। अगर हम खुदा से मुलाकात करना चाहते हैं तो हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो रास्ता हमें खुदा ने बाइबल में दिखाया है। अगर हम बाइबल के रास्ते पर नहीं चलते तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है। प्लीज़ हमें खुदा के बनाए हुए रास्ते पर चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा ने हमें मार्ग दिया है, हमारा फर्ज है उस पर चलना। सब बरकतें उसी मार्ग पे मिलेंगी, सब बातें उसी मार्ग पे पूरी होंगी। सब बरकतें, सब मुलाकातें, खुदा से मुलाकातें, खुदा की मोहब्बत हमें उसी रास्ते पे मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। आइए हम भी बच्चों जैसे बन जाएं। बच्चे छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, हम बड़ी बड़ी बातों से भी खुश नहीं होते। बच्चों में ना लालच होती है, ना घमंड होता है, ना दिखावा होता है, ना जलसी होती है। वे साफ दिल और साफ हार्ट होते हैं। आज आइए हम भी बच्चों जैसे अपने आप को बनाएं, ताकि यीशु मसीह हमें भी कहे, बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों में डबड़ने लगी और वो सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा, सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। चेलों को मालूम था कि यीशु मसीह हमारी किश्ती में सवार है, फिर भी डर गए। चेलों को पता था कि यीशु मसीह अगर हमारे साथ है तो हम डूब नहीं सकते, फिर भी डर गए। चेलों को मालूम था कि यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, फिर भी डर गए। हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। जब हम सीधे मार्ग पे चलते हैं, हमारा रास्ता सीधा होता है, हम स्ट्रेट देखते हैं, हम सीधा देखते हैं, तो हमारे जीवन में डर कभी नहीं आता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मत इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ।
जब हम इधर उधर ताकते हैं तो हमारे जीवन में डर आता है, खौफ आता है। हमें ज़रूरत है अपने आप को जांचने की कि आज हमारा विश्वास ऐसा है कि हमको पता है कि यीशु मसीह तूफानों को थाम सकता है, आंधियों को थाम सकता है, बड़ी बड़ी आफतों विपदाओं को थाम सकता है। तो फिर हम आज से, अभी से अपने जीवन से डर दूर करें। तो आज ही से ये विश्वास करें कि हमारे जीवन में कोई तूफान हमको गिरा नहीं सकता, कोई भी आंधी हमें डामाडोल नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा अनंत विश्वास खुदा के ऊपर है। नहीं तो यीशु मसीह हमको कहेगा, हे अल्प विश्वासियों, मत डरो। जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे, और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके बस्तर के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से समर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ है, और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि यीशु मसीह कहे कि मुझे किसी ने छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से समर्थ बाहर निकली?